Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Bless your name. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name, Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Shalom and greetings. Brother Ravi Prakash Gupta, the Lord bless you, brother, for the seed that you have planted for the motorbike. I pray that the Lord God of Israel will return you 1,000-fold, as he has decreed in Deuteronomy 1:11. 1,000-fold increase. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name, Lord God. We bless your holy name. We magnify you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. 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 Lord, we bless you. We bless you, Lord. We praise you. Lord, we glorify you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aragadalahite. Blessed be your name, blessed be your name. King of glory, we bless you. King of glory, we magnify you, magnify you. King of glory, we magnify you. Lord, we thank you for your divine protection. Lord, during these precarious times, talking in the and is creating fear in the hearts of men. Such panic is all around. But Lord, your word says, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed. प्रभु का वचन कहता है, जिसका हृदय तेरी ओर लगा है, तू उसे सच्ची शांति से भर के रख. हालेलुया. तेरा धन्यवाद प्रभु. तेरे नाम की महिमा हो. तेरा धन्यवाद प्रभु. तेरे नाम की महिमा हो. Thank you, Lord, we bless you. Jesus, we thank you. Lord, we bless you. We bless you, bless you. Righteous ones, the Lord will keep those who love him and fear him. Lord will keep them under his blood who walk according to those who live the word of the Lord out through their lives. परमेश्वर उनको अपने सुरक्षा कवच में रखेगा. हालेलुया. प्रभु ने, यहोवा ने जब मिस्र के ऊपर बवा भेजी, प्लेग्स भेजी, मैंने आपको पहले भी बताया, परमेश्वर बाइबल में इज़राइल से यूँ कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरी चितौनियों की और मेरी विधियों, मेरे हुक्मों की पालना नहीं करोगे और मेरी वाचा को अपने पाँव के नीचे रौंदोगे, और प्रभु कहता है यदि तुम अन्य जाति जैसे छिनाले के काम करोगे. और 3 विशेष बातें हैं पुराने नियम में. प्रभु कहता था, इफ़ यू विल गो आफ्टर, इफ़ यू गो होरिंग आफ्टर द पेगन गॉड्स, एंड इफ़ यू विल गो एंड वर्शिप बालीम्स, बाल की पूजा करोगे, एंड इफ़ यू विल वर्शिप ग्रोव्स, ग्रोव्स का मतलब प्रभु कहता है यदि तुम बालीमों की पूजा करोगे, बाल की और ग्रोव की. ग्रोव का कई जगह बाइबल में लिखा है यदि तुम पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे पूजा करोगे. और तीसरी बात प्रभु कहता है इफ़ यू विल वर्शिप द प्लैनेट्स,
if you will worship the stars, आकाश के गण लिखा गया है, हिंदी में आकाश के गण, ये जो राशियां हैं, यदि तुम इनकी पूजा करोगे जैसे दुनिया में लोग करते हैं, वो उन शुभ अशुभ देखते हैं, लगन देखते हैं, शुभ लगन और बुरा लगन, और ये देखते हैं कि शनि वक्री है, राहु केतु वक्री हैं या सीधे चल रहे हैं, कौन सी कॉन्स्टलेशन में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा ज्ञान असल में ज्योति का ज्ञान था। ये यहोवा ने दिया था इस्राएल को, बाइबल में है ये सच्चा ज्ञान, लेकिन अंधकार के दूतों ने इसे चोरी किया। अगर आप पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड 38th chapter of book of Job, and if you read verse number 30, 31, 32, God is talking about all, not all, but many of the constellations. The Lord is asking a question. He's saying, Job, can you bring out the Mazzaroth? If you study the King James Version, it says, can you bring out the Mazzaroth? Some other translations say, can you bring out Zodiac? राशियां जिसे बोलते हैं, क्या तू उनको निकाल सकता है? And then God is talking about different constellation. Can you bind the sweet influences of the Pleiades? And then he talks about Orion, then he talks about, bear with its cubs. He's talking about all the constellations in the sky. These constellations were created by God. God placed them, and God calls this gigantic system Mazzaroth in Hebrew में. Hebrew में ये शब्द है Mazzaroth. Mazzaroth का मतलब है ये कॉन्स्टलेशन, और ये कॉन्स्टलेशन यहोवा का सच्चा ज्ञान देती हैं। किसी समय Mazzaroth के ऊपर हम टीचिंग करेंगे इन डेप्थ, बहुत ही डीप, पावरफुल, लाइफ चेंजिंग टीचिंग है इसके अंदर। Mazzaroth वर्ड की स्टडी करिएगा आप। Mazzaroth जो वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड ज़ोडिएक, ये हिब्रू रूट है वर्ड की ज़ादे। हिब्रू वर्ड है ज़ादे। ज़ादे का मतलब द वे, मार्ग। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे। आपको मालूम, बाइबल में स्वर्ग को या हेवन को हशमाएम कहा गया है, हशमाएम, और ये प्लूरल वर्ड है। और बहुत से बाइबल के मसीहानिक स्कॉलर मानते हैं कि हशमाएम का मतलब स्क्रोल भी होता है, पार्चमेंट, स्क्रोल। इसीलिए पतरस लिखता है अपनी पत्री में कि यहोवा परमेश्वर स्क्रोल की तरह आकाश को लपेट देगा और इसे अग्नि में से निकाल के रिन्यू किया जाएगा। द हेवन, द फर्मामेंट, द अर्थ, दे ऑल विल बी पर्ज्ड बाय फायर and God will renovate everything. There will be a new heaven and there will be a new earth. Everything is going to go through fire. The Lord will remove the very stigma of sin. The sin of the celestial being, by virtue of which they cohabited with human women, and they produced a race of Nephilim. And also God will purge ultimately the human sin. तो ये जो Mazzaroth है, आप इसके विषय में पढ़ते हैं 38th chapter of Job। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही डीप हम टीचिंग करेंगे, अभी नहीं, बट सम अदर टाइम आई विल, मे बी 3-4 सेशंस की टीचिंग होगी, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की टीचिंग हो, तो हम इसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं और पूरा गॉडली पर्सपेक्टिव हम परमेश्वर के कलाम में से सीख सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ। टर्न टू बुक ऑफ जॉब, बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 38, जॉब 38 एंड जॉब 38 एंड लेट्स रीड वर्स नंबर 31। जॉब 38-31 मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। यह न्यू इंटरनेशनल वर्जन है। अगर आपके पास किंग जेम्स है और ESV है, दैट्स इवन बेटर। तो मैं पढ़ता हूँ, भी सुनिए। कैन यू बाइंड द चेन्स ऑफ प्लीएडीज?
King James says, can you bind the sweet influences of Pleiades? Can you loosen Orion's belt? King James also says almost the same thing. Can you unleash the belt of the Orion? Verse 32 says, can you bring forth the constellations? And if you look the root word for constellation, it is Mezeroth. और हिंदी में लिखा होगा राशिफल. क्या तू राशियों को निकाल सकता है इन देयर सीजन? इनके सीजन्स हैं कॉन्स्टलेशंस के. ये हेवन में, स्काई में, तारों में अपीयर होती हैं कॉन्स्टलेशन इन देयर ड्यू सीजन्स. और लीड आउट द बेयर विद इट्स कब्स. ये भी एक कॉन्स्टलेशन है. बेयर विद इट्स कब्स, इट्स अ कॉन्स्टलेशन अप इन द स्काई. स्टार्स के अंदर हैं ये सब. और क्या कहता है दूसरी बात? कहता है, डू यू नो द लॉज ऑफ हेवंस? कैन यू सेट अप गॉड्स डोमिनियन ओवर द अर्थ? देयर आर लॉज दैट आर गवर्निंग हेवन. आपको मालूम ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, ये 12 कॉन्स्टलेशंस हैं. 12 कॉन्स्टलेशंस. और ये इलिप्टिकल हैं. इलिप्टिकल शेप में हेवन में स्टार फॉर्मेशन है. ये 12 स्टार की फॉर्मेशन है और इनके नाम यहोवा परमेश्वर ने रखे हैं. और ये जो कॉन्स्टलेशन है 12, इनका उदय कहाँ से हुआ? ये यहोवा ने बनाई. जब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को रचा, तारामंडल को बनाया. तो ये 12 की सिग्निफिकेंस क्या है? आप जेनेसिस चैप्टर नंबर 49 पढ़िए. उत्पत्ति की पुस्तक 49 चैप्टर में याकूब अपने 12 बेटों को आशीष देता है. तो 12 बेटों की आशीष से इनके नाम हैं जुड़े हुए. यहूदा जो है वो लायन है, शेर है. और यहूदा है लियो की कॉन्स्टलेशन, जिसे लोग कह देते हैं सिंह राशि. और आपको मालूम विर्गो एक कॉन्स्टलेशन है. विर्गो, जिसे हिंदी में लोग कह देते हैं कन्या राशि. तो ये इलिप्टिकल शेप में है, पूरी राउंड नहीं है, इलिप्टिकल शेप में है. इसलिए इसके जो 2 एक्सट्रीम कार्डिनल पॉइंट्स हैं, इसे हम सोलेस्टिस और इक्विनॉक्सिस बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में. जो इक्विनॉक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, स्ट्रेट लाइंस. और जो सोलेस्टिस हैं वो इसके एक्सट्रीम एज हैं. सोलेस्टिस 2 बार आता है. एक बार समर में आता है, एक बार विंटर में आता है. समर सोलेस्टिस 21 जून को होता है. पिछले महीने में 21 जून को समर सोलेस्टिस था और उसी दिन सोलर इक्लिप्स भी था. तो अगला जो है वो आएगा 21 दिसंबर को. तो ये जो पाथ है हेवन के अंदर, स्काई में, इस पाथ में सूर्य दौड़ता है. साम 90 पढ़ते हैं आप, उसमें लिखा है कि सूर्य एक दूल्हे की तरह मंडप के एक छोर से निकलता है और पूरा अपनी दौड़ को पूरा करता है. सूर्य मंडप से निकलता है. ये एक मंडप है जो यहोवा परमेश्वर ने आकाश में लगाया है. इसके अंदर सूर्य प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है. सूर्य मंडप के एक छोर से निकलता है और अपनी पूरी यात्रा करता है. हालेलुया. और आपको मालूम, ये जो सूर्य मंडल की ये जो यात्रा है, ये जो सफ़र है, इससे दिन और रात, महीने और साल बनते हैं. हालेलुया. तो जो अगर आप देखेंगे, अगर आप इजिप्ट में जाएं, मिस्र में, तो वहाँ पे आपको पिरामिड मिलेंगे. ये जो पिरामिड हैं, इनकी मिस्ट्री जो है अभी तक विज्ञान सॉल्व नहीं कर पाया. लेकिन ये पिरामिड बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना है. पिरामिड्स की जो रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, रेडियो कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है
जिससे विज्ञान ये पता लगाता है कि ये बिल्डिंग कब बनाई गई। तो रेडियो कार्बन डेटिंग बताती है कि ये प्री डिल्यूवियन स्ट्रक्चर्स हैं। प्री डिल्यूवियन का मतलब होता है नूह के जो प्रलय आई, जल प्रलय, नूह की जो बाढ़ आई, जिसे हड़ बोलते हैं, नूह का हड़, उससे पहले की बनाई गई इमारतें हैं। तो कुछ स्कॉलर मानते हैं कि हनूक के समय में बनाई गई शायद ये, और कुछ लोगों का ये विचार भी है कि इन्हें नफलीमों ने बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जो मिक्स ब्रीड नफाल्स पैदा हुए, जायंट, उन लोगों ने इसे बनाया। और ये बहुत साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स हैं। इनकी अलाइनमेंट है इन कॉन्स्टलेशन के साथ, जिन कॉन्स्टलेशन के विषय में हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक में। ये अलग अलग कॉन्स्टलेशन हैं। जब हम इन कॉन्स्टलेशन के विषय में पढ़ते हैं तो इनकी उसके संग अलाइनमेंट है। अगर आप जाएंगे वहाँ पे इजिप्ट में, तो जहाँ पे पिरामिड है वहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत अद्भुत स्ट्रक्चर है, उसे स्पिंक्स बोलते हैं। स्पिंक्स, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर शेर और एक औरत है, लायन एंड अ वुमन, दोनों की इमेज बनी हुई है। वो जितने पॉइंट्स हैं, इनके जो टिपिंग पॉइंट्स हैं पिरामिड्स के, ये कॉन्स्टलेशन के संग अलाइन करते हैं। और ये जो नॉलेज थी, ये प्री डिल्यूवियन वर्ल्ड के अंदर थी। ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान, ये परमेश्वर का सच्चा ज्ञान था, लेकिन अंधकार के राज्य ने इसे हाईजैक किया। हालेलुया। ये जो कॉन्स्टलेशन है, इन कॉन्स्टलेशन की आराधना करना, पूजा करना पाप है। हालेलुया। क्योंकि तू अपने प्रभु यहोवा को छोड़ किसी और के आगे ना तो दंडवत करना, ना किसी की उपासना करना, ना किसी चीज़ की प्रतिमा बनाना, आकाश में, पृथ्वी पे या पृथ्वी के नीचे, ना ही उनको झुक के सजदा करना। हालेलुया। और अपने प्रभु यहोवा का नाम व्यर्थ में मत लेना। तो प्रभु ने इज़राइल को बार बार क्या कहा? प्रभु ने इज़राइल से कहा, अगर तुम बालीमों की पूजा करोगे, और अगर तुम ग्रोव्स की पूजा करोगे, और आकाश के गणों की, ये 3 चीज़ों की पूजा पद्धति थी जो बाबिलोन से शुरू हुई। जो बुर्ज निम्रोद और सारे लोग यूनाइट होके बना रहे थे, वो बुर्ज भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर था, पिरामिड की तरह, जिसको इन कॉन्स्टलेशन के संग अलाइनमेंट में लाके ये लोग शैतानी काम करना चाहते थे। तो परमेश्वर ने उनकी मनसा को, उनके इरादे को पूरा नहीं होने दिया। तो ये आप देखते हैं मिस्र में जो स्पिंक्स है, वो सिंह है, सिंह राशि है और कन्या राशि है, दोनों हैं। तो शुरुआत जो है वो कन्या से है। कन्या राशि में आप क्या देखते हैं? एक स्त्री ने बच्चा उठाया हुआ है। प्रभु के वचन में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जिब्राइल स्वर्गदूत आके मरियम से कहता है, धन्य है तू पृथ्वी की सब स्त्रियों में से, क्योंकि यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक अद्भुत बालक को जन्मेगी, वो पवित्र आत्मा का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वो मनुष्य, वो अपने आप को कहेगा तो मनुष्य का पुत्र, लेकिन मनुष्य का बीज नहीं होगा उसके अंदर। वो होली स्पिरिट से प्रेग्नेंट होगी वो कन्या और एक बालक को जनेगी। हालेलुया। और लियो एक इधर का कार्डिनल पॉइंट है, एक ऑपोजिट कार्डिनल पॉइंट है। अर्थात ये जो सर्कल है मेजोरॉथ का, एलिप्टिकल पाथ है, इसका एक एज है कन्या, जिसे हम विर्गो बोलते हैं, और दूसरा एज है इसका लियो, जिसे हम सिंह बोलते हैं। वो पहले मेमना बन के आया कुंवारी की कोख से, और अब वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर होकर आएगा। और ये सारी उसकी कहानी है मेजोरॉथ के अंदर। समझते हैं आप? जो पहली राशि है कॉन्स्टलेशन की, उसे लोग बोलते हैं मेष। वो एक मेमना है, मेढा है, मेमना नहीं है, एक मेढा है जिसके सिंग राउंड होते हैं, गोल होते हैं। आपको मालूम, इब्राहिम जब हमारे पुरखे इसहाक को जगवेदी पे रखे था और उसकी कुर्बानी करने वाला था, तो
तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रकट हुए। वो जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, मैंने आपको बताया हामिल अल अडोनाई उसका नाम है। वो एंजल नहीं है, वो प्री इनकारनेट क्राइस्ट है, वो थियोफनी है जीसस की। मरियम की कोख में दे लेने से पहले भी यीशु मसीह के पास एक अविनाशी विराट देह है और वो अलग अलग समय प्रकट होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं जान गया कि तू मुझसे प्यार करता है। और इब्राहिम ने कहा था अपने पुत्र इसहाक से, याहुआ याहिरा, यहोवा मुहैया करेगा, जिसका मैसियानिक लोग ये भी ट्रांसलेशन करते हैं, याहवे विल बिकम द लैम। याहवे विल नॉट ओनली प्रोवाइड द लैम, बट याहवे विल हिमसेल्फ बिकम द लैम। तो उसने अपनी नज़र उठा के देखा, झाड़ी में एक मेढा फंसा हुआ था सिंगों से, और उसने उसे निकाला और उसको अपने पुत्र की जगह कुर्बान किया, जिसे लोग मेष कहते हैं। ये सारी यीशु मसीह की कहानी है। फिर उसके बाद टॉरस है जो बैल है। वो बैल कौन है? वो बैल है प्रभु यीशु मसीह। वो बैल की तरह पेश किया है मरकुस ने। वो नौकर बन के आया, सेवा करने के लिए आया। बैल जो जो चरबीम है, जिसे करूबीम बोलते हैं, द लिविंग क्रीचर हेवन में, वो लिविंग क्रीचर के 4 फेसेस हैं। एक बैल का है, एक सिंह का है, एक उकाब का है, एक मनुष्य का है। ये 4 जो चेहरे हैं उस लिविंग क्रीचर के, ये चारों ही चेहरे परमेश्वर ने दिखाए हैं नए नियम में। मत्ती जो उसका चेहरा दिखाता है वो सिंह का चेहरा है, क्योंकि उसमें वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है और दाऊद के सिंहासन पर राज्य करने के लिए आता है। मरकुस जो उसका चेहरा दिखाता है, मरकुस का जो सुसमाचार है वो रोमियों के लिए लिखा गया है। रोमन्स didn't want to read lengthy discourses. They wanted everything to the point. And Romans wanted slaves. They were turning people into slaves. They were conquering nations and they were enslaving people. They needed workers to work for them to build their empire. So Romans के लिए मरकुस इंजील लिखता है और यीशु मसीह को कैसे पेश करता है? यीशु मसीह की कोई जीनियोलॉजी नहीं देता है, यीशु मसीह का कोई बर्थ के विषय में नहीं बताता, सीधी उसकी मिनिस्ट्री दिखा रहा है। और मरकुस क्या बता रहा है? 9th chapter 45th वर्स में मरकुस कह रहा है, आई डिड नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व एंड ले डाउन माई लाइफ एज अ रैंसम फॉर मैनी। मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ और अपनी ज़िंदगी को दूसरों की फिरौती में देने के लिए आया हूँ। तो मरकुस उसे बैल के रूप में पेश करता है और लूका जो है वो उसे मनुष्य के रूप में पेश करता है। उसका एक चेहरा मनुष्य का है, लिविंग क्रीचर का। तो वो मनुष्य ऐसा मनुष्य जो कामिल है, मुकम्मल है, परफेक्ट है, और वो अपना सुसमाचार ग्रीक लोगों के लिए लिख रहा है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, हेरोडोटस, they were looking for a perfect man. They believed that knowledge is the highest virtue, and by virtue of that highest illumination, man will become perfect. And once man becomes perfect on the inside, he is liberated. All the ignorance and all the darkness that enslaves man is dispelled out. That's the Greek philosophy, to liberate people. They were looking for a perfect man. So Luke presents Jesus as a perfect man. Hallelujah. लूका बार बार यीशु मसीह को सन ऑफ मैन लिख रहा है। आपको मालूम यीशु मसीह का फेवरेट टाइटल अपने लिए क्या था? यीशु मसीह अपने आप को सन ऑफ गॉड नहीं कहता था। यीशु मसीह का फेवरेट टाइटल अपने लिए था सन ऑफ मैन। देखिए कितनी अजीब बात है कि पृथ्वी पे मेरे जैसे मनुष्य, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, खाकसार हैं, हम अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल लगाना पसंद करते हैं। मेजर, माइनर, हिज एक्सेलेंसी, हिज होलीनेस विथ बिशप, ओवर आर्चिंग बिशप, हिज एक्सेलेंसी द बिशप, हिज होलीनेस, हिज फलाना ढिमका, चीफ पास्टर, चीफ अपोस्टल, फर्स्ट लेडी, फलाना ढिमका, कितनी एंटाइटलमेंट ढूंढते हैं। बट यीशु मसीह अपने नाम के संग मनुष्य का पुत्र लगवाता था।
जो मनुष्य का पुत्र है वो अपने आप को डिवाइन बताना मांगता है, लेकिन जो सन ऑफ द लिविंग गॉड है, यू नो, इन एंड आउट डिवाइन है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ सन ऑफ मैन। लेकिन ये सन ऑफ मैन बहुत अद्वितीय है, अद्भुत है। सन ऑफ मैन आपको मालूम कौन है? जब यीशु मसीह यहूदियों को बार बार कहता है सन ऑफ मैन, यीशु मसीह कहता है तुम स्वर्ग को खुला देखोगे और सन ऑफ मैन को मोस्ट हाई के राइट हैंड बैठे देखोगे। तो यीशु मसीह उनको बता रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके सन ऑफ मैन कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यीशु मसीह दानियल नबी की पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है। केवल एक रेफरेंस था यहूदियों के पास, ये सन ऑफ मैन कौन है? ये सन ऑफ मैन इटर्नल है, एजलेस है। ये सन ऑफ मैन अनक्रिएटेड मैन है, हु ऑलवेज लिव्ड इन हेवन। तो दानियल देखता है कि एंशंट ऑफ डेज, जो अनंत परमेश्वर है, वो सिंहासन पे बैठा और मनुष्य के पुत्र को वहाँ पे अशर किया गया उसकी प्रेजेंस में, सन ऑफ मैन को। और सन ऑफ मैन ने आके उससे वो बुक ले ली। हालेलुया। That Son of Man is nobody else but the eternal, uncreated Son of the living God. Hallelujah. और यूहन्ना अपनी पत्री में यीशु मसीह को उकाब की मानंद पेश करता है। ईगल का मतलब इटर्नल गॉड। हालेलुया। तो मैं किसी समय मेजरॉथ पे आपको टीचिंग दूंगा। बहुत से लोग शायद मेजरॉथ का मतलब भी नहीं जानते, और कुछ लोग इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनको टच करना पसंद नहीं करते। तो ये सारा ज्ञान यहोवा का था जिसे संसार के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। इसे टैरट कार्ड रीडर हाईजैक करके ले गए, इसे विजर्ड्स, वॉरलॉक्स, इसे लूसीफेरियन, इसे इल्यूमिनाटी, इसे एस्ट्रोलॉजर, इसे नक्षत्रों शुभ अशुभ बताने वाले लोग, भावी कहने वाले लोग, जादूगरी करने वाले लोग हाईजैक करके ले गए। लेकिन ये तो तारों के अंदर लिखा हुआ है। आपको मालूम है बाइबल तारों में लिखी गई है, पूरी बाइबल। उसके बाद यहोवा ने पृथ्वी पे उतारी है ये। हालेलुया। साम 19 पढ़िए, आकाश मंडल यहोवा की हस्तकला को दिखाता है। हालेलुया। किसकी हस्तकला को दिखाता है? यहोवा की। तो मैंने बताया कि टॉरस जो है, वृष राशि, वो जीसस का स्वरूप है, वो सेवा करने आया है। उसके बाद आप देखते हैं जो मेष है वो यीशु मसीह की रिडीमिंग अटोनिंग डेथ है, वो मेष बन के आया है। हालेलुया। मेष का मतलब मेमना होता है। प्रजापति ही यति यज्ञ यश मेषा, ऋग्वेद के अंदर लिखा, प्रजापति ही यज्ञ सनावी, प्रजापति ही यति यज्ञ यश मेषा। यज्ञ करेगा परमेश्वर, उस यज्ञ में मेष बन के, मेमना बन के स्वयं परमेश्वर आएगा। प्रजापति ही यति यज्ञ समधि, प्रजापति ही यति यज्ञ मोक्ष प्राप्ता। हाँ। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो कहते थे अहाँ यज्ञ भुवनस्य नाभि, कि भूमि की नाभि पे वो यज्ञ किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था इज़िकियल 38 के 12 में लिखा है, ओरिजिनल ग्रीक हिब्रू टेक्स्ट में, कि वो जगह जहाँ यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, जिसे हम कहते हैं गोलगाथा, द प्लेस वेयर द स्कल ऑफ गोलायथ वॉज बैरिड बाय डेविड। वो नफलीमों के बीज को जहाँ दफन किया और जहाँ पे आदम को भी दफन किया गया था, एग्जैक्टली वहीं यीशु मसीह मरा। हालेलुया। और फिर आप देखते हैं कि एक्सक्यूज मी, जेमिनाई एक राशि है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों दिखाए गए हैं, विच इज़ जीसस एंड हिज चर्च। लीब्रा जो है, लीब्रा के स्केल्स हैं, वो जजमेंट को दिखा रहा है कि जजमेंट हुई और मैन काइंड वॉज डिक्लेयर्ड सिनर, ऑल हैव सिन्ड एंड हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। और यीशु मसीह ने पेमेंट की उसकी। हालेलुया। ये सब पूरी वॉर को दिखा रहे हैं, अलग अलग जितनी कॉन्स्टलेशंस हैं। आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या कहता है? पढ़िए एक वचन जल्दी से मेरे साथ। लेट मी शो यू अ स्क्रिप्चर। एक्चुअली मैं आज बात कुछ और करना चाह रहा था, बट इसने कुछ और टर्न ले लिया। तो हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ, आइए जल्दी से, निकालिए रोमन्स चैप्टर नंबर
10। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल भी खोल लें और हिंदी में, हिंदी में इसे अंकित कीजिएगा। प्लीज़ पुट इट ऑन द चैट so that people can see in Hindi. हालेलुया। पढ़िए इसे। रोमन्स 10 वर्स नंबर 14 हिंदी में प्लीज़ प्रिंट कीजिए। रोमियो 10 की 14। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे। हाउ देन कैन दे कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड दे हैव नॉट बिलीव्ड। इससे पीछे अगर पढ़ेंगे तो लिखा है एवरी वन हु कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। 14 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है हाउ देन कैन दे कॉल ऑन द वन दे हैव नॉट बिलीव्ड इन। तो कैसे उसका नाम लेंगे जिसके नाम पे विश्वास ही नहीं किया। हालेलुया। तो पहले विश्वास आएगा, और विश्वास कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से एक वरदान के रूप में विश्वास हमारे दिल में डालेगा, लेकिन वचन आएगा तब संग में विश्वास आएगा। हाउ कैन दे कॉल ऑन द वन दे हैव नॉट बिलीव्ड इन। वो उसे कैसे पुकारेंगे जिस पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। एंड हाउ कैन दे बिलीव इन द वन हुम दे हैव नॉट हर्ड। और उसके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं है। प्रेरित पौलुस बहुत लॉजिकल क्वेश्चन रख रहा है यहाँ पे। कैसे कहता है उस पर विश्वास करेंगे जिसके बारे में सुना नहीं, सुसमाचार नहीं सुना। एंड हाउ कैन दे हियर विदाउट समवन प्रीचिंग टू देम। और कैसे वो सुनेंगे जब तक कोई उन्हें वचन सुनाता नहीं। तो प्रेरित पौलुस ये क्वेश्चन कर रहा है, और प्रेरित पौलुस बता रहा है कि सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों को प्रभु के विषय में बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 15 वचन पढ़िए। एंड हाउ कैन एनी वन प्रीच अनलेस दे आर सेंट। तो प्रभु का प्रचार कौन करेगा? जिसे प्रभु भेजता है प्रचार के लिए। हालेलुया। प्रभु अभिषेक करके भेजता है। जो प्रभु के द्वारा भेजा जाता है वो प्रभु का नौकर होता है। और भेजने के लिए जो ग्रीक वर्ड है अपस्टोलोस, ग्रीक वर्ड है अपस्टोलोस, जहाँ से वर्ड निकलता है अपोसल। अपस्टोलोस ग्रीक वर्ड है, वहाँ से वर्ड निकलता है अपोसल। द वन हु इज सेंट, जो भेजा जाता है। तो लिखा है 15 वचन। एंड हाउ कैन एनी वन प्रीच अनलेस दे आर सेंट। हाउ विल दे प्रीच अनलेस दे आर सेंट बाय गॉड। नाउ एज इट इज़ रिटन हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग गुड टाइडिंग। कितने खूबसूरत पाँव हैं उनके जो सुसमाचार लेकर आते हैं। यशाया 52 चैप्टर की 7th वर्स के अंदर लिखा है। नहूम 1 के 15 के अंदर लिखा है। पढ़िएगा ये दोनों वचन। आइज़ाया 52 वर्स नंबर 7 एंड नेहम चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 15। क्या लिखा है 16 वचन में? बट नॉट ऑल द इजराइलाइट्स एक्सेप्टेड द गुड न्यूज़। नॉट ऑल द इजराइलाइट एक्सेप्टेड द गुड न्यूज़ फॉर आइज़ाया सेज लॉर्ड हु हैज़ बिलीव्ड आवर मैसेज। क्योंकि यशाया कह रहा है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। इब्रानियों 4 का 2 पढ़िएगा। इब्रानियों लिखने वाला यही बात कह रहा है। और यशाया 53 चैप्टर वर्स नंबर 1 पढ़िएगा। यही बात वहाँ पे कही गई, और यही बात यूहन्ना 12 अध्याय के 38 वचन में है। मैं ये वर्सेस कोट कर रहा हूँ, आप इनको प्रिंट कीजिए यहाँ पे। और क्या लिखा है? किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। 17 वचन पढ़ें। कॉन्सिक्वेंटली फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द मैसेज एंड द मैसेज इज़ हर्ड थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। हम किंग जेम्स में पढ़ते हैं फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कैसे आता है? जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को सुनते हो तब विश्वास आता है। अब 18 वचन पढ़ें। बट आई आस्क डिड दे नॉट हियर। अब सुने ध्यान से। प्रेरित पौलुस ये सारे सवाल करता आ रहा है, और ये भी कह रहा है कि इज़राइल ने विश्वास नहीं किया। और फिर ये बात कर रहा है कि विश्वास तो वचन को सुनने के द्वारा ही आएगा। विश्वास के आने का कोई और स्रोत नहीं है। किसी और जगह से आपको विश्वास नहीं मिलेगा। यू मस्ट हियर द वर्ड एंड द हियरिंग ऑफ द रेमा वर्ड ऑफ गॉड
will produce faith on the inside of you. The only source of faith is the Word. And the Word of the Lord is the DNA of God. It's the very genoma of God Almighty. And the genoma of God Almighty will enter into your recreated spirit. And there, the genomes, the DNA, the RNA of God will birth pistis, faith. And did you know that the faith that I'm talking about, you know, people say Islamic faith, Radha Swami faith, Hindu faith, you know, all kinds of faith. The faith that I am talking to you is not an ideology or a concept or a religious idea, but this faith that I am talking with you is a person. This faith that Bible describes is a person. Bible says the faith comes by hearing. And you remember Jesus in the boat, when he looked at his apostles who were frightened, he said, "Where did your faith go?" Enemy can come and put you in panic and faith will depart. And when Jesus will walk, when the Rhema word of God will come, faith will come. Faith has feet. Faith can come and faith can go. And you remember Paul says the spirit of faith. We have this spirit of faith. So faith is a spiritual entity. This faith that I am talking about is not an idea. It is not a concept. It's not something religious that you can develop in you or you can inherit. This faith is the very presence of Jesus that I am talking about. हालेलुया। तो प्रभु का दास क्या कहता है यहाँ पे? प्रभु का दास कहता है, सुनिए ध्यान से, प्रभु का दास कहता है कि क्या सब इजरायलियों ने एक्सेप्ट कर ली गुड न्यूज़? 16 वचन में, फॉर आइजाया सेज लॉर्ड हु हैज़ बिलीव्ड द रिपोर्ट। कॉन्सिक्वेंटली फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द मैसेज, and the message is heard through the word of Christ. This is NIV, but King James says the faith comes by hearing and hearing by the word of the Lord. तो प्रभु का दास सवाल कर रहा है कि इसराइलियों ने एक्सेप्ट कर ली गुड न्यूज़? लिखा उन्होंने नहीं की। तो अगर आप पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में लिखा है कि उनको भी सुसमाचार प्रचार किया गया विल्डरनेस में। Children of Israel received the gospel in the wilderness. But what they did not blend the gospel, the good news, the word of the Lord with faith. Since they did not blend the gospel with faith, so it did not work for them. Hallelujah. उनके जीवन में सुसमाचार ने काम नहीं किया। हालेलुया। यही बात प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पे इससे भी बहुत गहरी बात आगे कर रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए ध्यान से, 18 वचन, बट आई आस्क डिड दे नॉट हियर? क्या उन्होंने सुना नहीं? प्रभु का वचन, सुसमाचार नहीं सुना? आगे प्रभु पौलुस क्या कहता है 18 वचन में, ऑफ कोर्स दे डिड, उन्होंने सुना, उन्होंने वचन सुना। हालेलुया। प्रभु किनकी बात कर रहा है? प्रभु रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 18 वचन से मैनकाइंड की बात कर रहा है। प्रेरित पौलुस बात कर रहा है रोमियो की पत्री में पहले अध्याय के 18 वचन से। अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु बताता है, प्रभु का दास बताता है मनुष्य मैनकाइंड के विषय में कि उनके पास परमेश्वर के विषय में ज्ञान तो था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, जीवते परमेश्वर की स्तुति नहीं की, और उनके मन अंधेरे से भर गए और वो अपने आप को बुद्धिमान मान के मूर्ख बन गए। और उन्होंने क्या गुनाह किया, क्या सिन किया? उन्होंने अविनाशी विराट जीवते परमेश्वर की महिमा को नाशवान पंछी, रेंगने वाले जानवर, जंतु, चौपाएं और मनुष्य की समानता में बदल दिया। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा की जगह सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी, मनुष्य की उपासना करनी शुरू कर दी। जो जो परमेश्वर ने सृष्टि में सृजा, उस सृष्टि की चीज़ों की पूजा करनी शुरू कर दी, और ऐसा करने से उनके मन अंधेरे हो गए और वो अपनी देहों को वासना में, शरीर की कामना में, शरीर के गंदे कामों में अपनी देह को दूषित करने लगे। तब वचन में लिखा है प्रभु ने उनको छोड़ दिया।
गॉड अबेंडन देम टू देयर रेप्रोबेट माइंड। उनके गिरे हुए घिनौने मन के ऊपर प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया, मैनकाइंड को त्याग दिया प्रभु ने। बाबुल का जब बुर्ज बना प्रभु ने उनको त्याग दिया। लेकिन प्रभु का दास क्या कहता है? प्रभु का दास बहुत अद्भुत बात कह रहा है। प्रभु का दास कह रहा है कि क्या, पहले तो बात कर रहा है कि लोग कैसे सुनेंगे प्रभु के बारे में जब तक कोई जाएगा नहीं, कोई सुसमाचार सुनाएगा नहीं, तो वो कैसे सुनेंगे? तो कोई कैसे जाएगा जब तक उन्हें भेजा नहीं जाता? फिर बात करता है कि विश्वास कैसे आएगा, विश्वास के बगैर प्रभु के नाम को वो कैसे सुनेंगे? विश्वास आएगा प्रभु के वचन के सुनने के द्वारा। जब तक कोई सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा लोगों को कैसे पता लगेगा? फिर अचानक बात करते करते प्रेरित पौलुस एक बड़ी अद्भुत बात कर रहा है यहाँ पे। प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? 18 वचन में सवाल करता है, बट आई आस्क डिड दे नॉट हियर? क्या उन सब ने सुना नहीं प्रभु का सुसमाचार? फिर कहता ऑफ कोर्स दे डिड, उन्होंने सुना। कैसे सुना? उस समय की मनुष्य जाति ने, सारी मानव जाति ने प्रभु का वचन कैसे सुन लिया? आगे क्या कहता है प्रेरित पौलुस? हालेलुया, पढ़िए आगे, हालेलुया। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस ज़बूर 19 में चला जाता है। प्रेरित पौलुस कहता है, देयर वॉइस हैज़ गॉन आउट इनटू द वर्ल्ड, देयर वर्ड्स टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। प्रेरित पौलुस कहाँ चला गया? प्रेरित पौलुस कहता है लोगों ने सुसमाचार सुना, लोगों के ऊपर सुसमाचार प्रकट हुआ। कहाँ से हुआ? पढ़िए, भजन में से कोट कर रहा है। 19 ज़बूर 19 भजन की 4 आयत। वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे लिखा, आकाश मंडल यहोवा की हस्तकला को दिखाता है, तारे उसकी महिमा कर रहे हैं। तारागण, तारों के अंदर बाइबल लिखी हुई है, कॉन्स्टलेशन के अंदर बाइबल लिखी हुई है। ये जो राशियां हैं इनके अंदर सुसमाचार लिखा हुआ है। मेष बता रहा है कि वो मेमना मारा जाएगा, हालेलुया। टॉरस राशि बता रही है कि वो बैल की नाई हमारे लिए बैल बन के पृथ्वी पे आया, टू पे द प्राइस, ही बिकेम अ स्लेव फॉर अस, हालेलुया। लिब्रा बता रहा है कि जस्टिस किया गया, यीशु मसीह के ऊपर हमारा दंड डाल दिया गया। दैट्स व्हाट लिब्रा इज ऑल अबाउट। फिर क्या वचन के अंदर लिखा है? जेमनाए। जेमनाए का मतलब क्या है? उसने दुल्हन अपने लिए तैयार की। स्त्री और पुरुष है जेमनाए में। फिर आगे क्या है? फिर आगे एक्वेरियस। एक्वेरियस क्या है? घड़ा है, कुंभ राशि बोलते हैं उसको, घड़ा है पानी का। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहता है? जब यीशु मसीह दुल्हन अपने लिए तैयार करता है, हालेलुया, उसकी मंगनी होती है, तो यीशु मसीह क्या कहता है उससे पहले अपने चेलों को? यीशु मसीह के चेले कहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट अस टू प्रिपेयर द लास्ट सपर फॉर यू? व्हाट डज द लॉर्ड से? द लॉर्ड सेज, गो इन दैट सर्टेन टाउन एंड यू विल फाइंड अ मैन, ही इज कैरिंग अ पिक्चर ऑन हिज शोल्डर. In Israel, no man ever carried a pitcher of water on the shoulder. That was absolutely the job assigned to women. But this was something really bizarre, absolutely strange. Disciples were sent by the Lord to look for a man who's carrying a pitcher on his shoulder. And they followed the man. ये है कुंभ राशि, घड़ा पानी का। एक पुरुष अपने कंधे के ऊपर लेकर जा रहा है। यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों को? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया, उसकी मंगनी हुई, जब वो प्रभु भोज किया है, he got engaged to the bride, then he said I am coming back. जब वो मुर्दों में से जी उठा तो अपने चेलों से क्या कहता है? मैं पिता के पास जा रहा हूँ और मैं पिता से मिन्नत करूँगा। पिता क्या करेगा? होली स्पिरिट को पोर आउट करेगा। वो जो व्यक्ति है जो घड़ा भरा है पानी का, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और वो पुरुष है पिता परमेश्वर, जो उस पवित्र आत्मा के जल की नदी को बहा रहा है। प्रभु की प्रतिज्ञा है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पे, ओरिजिनल अगर आप हिब्रू पढ़ेंगे, हिब्रू टेक्स्ट इन बुक ऑफ जोएल, गॉड सेज आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश, एंड द वर्ड फॉर फ्लैश इन हिब्रू इज बसोरा. I told you many times, the word for flesh in Hebrew is basora. और आप हैरान होंगे कि सुसमाचार जो है, मत्ती का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, मरकुस का, यूहन्ना का सुसमाचार को बाइबल में बसोरा कहते हैं। तो जब हम कहते हैं मत्ती का सुसमाचार तो हम बात करते हैं यीशु मसीह के मांस की, फ्लैश,
जब हम कहते हैं किंगडम यीशु मसीह का राज्य है, हालेलुया, इट इज़ बसोरा मालखूता, यीशु मसीह का मांस का राज्य है, यीशु मसीह के लहू का राज्य है। दैट इज़ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की? प्रभु कहता है आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश, मैं सब फ्लैश के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। पहले यहोवा परमेश्वर केवल यहूदी फ्लैश के ऊपर अपना आत्मा उंडेलता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने बाबुल के बुर्ज के समय पृथ्वी की जातियों को त्याग पत्र दे दिया। 11 अध्याय जेनेसिस में और 12 अध्याय जेनेसिस में यहोवा परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया, और उसके बाद यहोवा परमेश्वर उस एक व्यक्ति के द्वारा काम करता है, उसमें से एक राष्ट्र पैदा करता है। इसहाक, यकूब, यकूब के 12 गोत्र, उनमें से कौम पैदा करता है यहोवा अपने लिए, जिसका नाम है इस्राएल। और उस कौम को इसलिए यहोवा खड़ा करता है कि वो यहोवा की विधियाँ, यहोवा के न्याय, यहोवा का हुक्म, यहोवा की वाचा, इसका ऐलान पृथ्वी के कुल गोत्र, भाषा, राष्ट्र, सभी पृथ्वी के प्राणियों के ऊपर करेंगे। और यहोवा उन्हें कहता है यू आर ए प्रीस्ट, यू आर ए नेशन ऑफ प्रीस्ट एंड किंग्स, तुम याजकों की और राजा की प्रजा हो मेरे लिए। बट वी सी इजराइल फेल्ड टेरेबली इन दैट मिशन, हालेलुया। तो ये सारी जो कहानी प्रभु पूछता है, कैन यू ब्रिंग आउट द मेजोराथ, द कॉन्स्टलेशंस? हु कैन ब्रिंग आउट द मेजोराथ, द कॉन्स्टलेशन? ओनली याहवे, हालेलुया। तो पलूस यही बात कर रहा है। पलूस कह रहा है पहले कह रहा है कि लोग जाएंगे तभी सुसमाचार प्रचार होगा, अगर नहीं जाएंगे तो लोग विश्वास कैसे करेंगे, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे। लेकिन 18 वचन में आके अचानक सारी बात चेंज कर देता है। कहता क्या उन्होंने सुना नहीं? फिर कहता ऑफ कोर्स उन्होंने सुना। कैसे सुना? देयर वॉइस हैज़ गॉन आउट इन टू द होल अर्थ, देयर वर्ड्स टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, हालेलुया। ही इज कोटिंग साम 19, ज़बूर 19। ज़बूर 19 क्या बता रहा है? कि तारा मंडल यहोवा की हस्तकला को दिखा रहा है। आकाश के अंदर कॉन्स्टलेशंस जो हैं, ये जिनको लोगों ने हाईजैक कर लिया है, ये कॉन्स्टलेशन यीशु मसीह की कहानी है, हालेलुया। इनके अंदर यीशु मसीह की स्टोरी लिखी है, ये यहोवा ने लिखी है स्टोरी, हालेलुया। आपको मालूम, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो एक यूनिक कॉन्स्टलेशन बनी आकाश में, यूनिक कॉन्स्टलेशन, विर्गो, जुपिटर, मार्स की कंजंक्शन से। और 2 इयर्स तक वो कॉन्स्टलेशन बनी रही, जिसे देख के पूरब देश के स्कॉलर लोग मानते हैं कि देवर सम पर्शियन एस्ट्रोनॉमर्स, स्कॉलरली लोग थे। साधु सुंदर सिंह जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उनमें से एक भारतीय था, और वो पुष्कर का पंडित था, तारों का ज्ञान रखने वाला। और उस विचित्र कॉन्स्टलेशन को देख के वो भी गया उन बाकी के मंजूषियों के साथ, और उसने भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, उपासना की, और वो प्रभु यीशु मसीह का दीवाना हो गया। साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में, एक पुस्तक है साधु सुंदर सिंह की, जिसमें वो अपने रेवलेशन के विषय में लिखते हैं। साधु सुंदर सिंह उसमें लिखते हैं कि वो व्यक्ति इतना अलौकिक रीति से यीशु मसीह का दीवाना हो गया, वो जो पंडित था पुष्कर का, वो वापस इंडिया लौटा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर चला गया। जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की तब वो भी लौट गया इज़राइल। और एक जगह मत्ती की इंजील में हम देखते हैं, यीशु मसीह के चेले आके यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हमने एक व्यक्ति को देखा जो तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, और हमने उससे कहा कि हमारे संग मिल जा, पर वो हमारे संग मिला नहीं। तो कुछ स्कॉलरली लोग बताते हैं कि यीशु मसीह के चेले हैरान इसलिए हुए क्योंकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, वो एलियन था, अर्थात जूइश नहीं था। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं उसके विषय में, ही इज़ नॉट स्कैटरिंग, ही इज़ गैदरिंग, हालेलुया। वो बिखेर नहीं रहा है, बल्कि वो इकट्ठा कर रहा है, हालेलुया। भाइयों और बहनों, ये पुस्तक जो आपके हाथ में है, ये पारलौकिक है। दिस बुक इज़ कम फ्रॉम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। दिस बुक डजंट हैव earthly origin. This book was not written in this dimension. Sometimes you don't understand Bible because this is not written in this domain in which you are born.
This is trans-dimensional. This book has a phenomenal, integrated, divine message that is come to us from beyond the blue skies. So we must have the Spirit being poured out on us from beyond the blue skies, who will illumine our hearts and illumine the words that are written here so that we can capture the meaning. It is absolutely so profound. And in these last days, there are segments of the Bible that were hidden, that were kept under a seal. But God in these last days is opening up these revelation realities for us. Hallelujah. So come nigh to this great book of God. मैं आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ. मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ यीशु मसीह के नाम में. अर्ली मॉर्निंग उठने का. मैंने ललित भाई को भी चैलेंज दिया, आपको भी दे रहा हूँ. Wake up early in the morning. If you can wake up 3, that will be awesome. If you can't 3, wake up at 4, 4:30. Wake up and take at least 1 hour to pray. And then take at least 1 hour in the early fresh hours to meditate on the word. Do it for 7 days. मैं सिर्फ 7 days का चैलेंज दे रहा हूँ. और हम लोग 7 days की फास्टिंग पे भी जाने वाले हैं. 7 days absolute fast करेंगे, only on water, and maybe you can take some, tea or green tea, something like that. For 7 days we will fast. We have to pray for some very, very important things that the Lord is showing. और उसमें भी आप मुझे ज्वाइन करें. If you can't for 7 days, do it for 1 whole day. Do it at least, for 3 days in a row, 2 days in a row. Let's enter into a deeper zone of the Spirit. आत्मा की गहराई में घुसें. Let's take an initiative. Bible says, draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. If you make a move for the Lord on the earth, if you just make a deliberate move, God will make several moves to come to you. These are very, very exciting times. These are times when we must make an initiative to meet our God. Hallelujah. उससे भेंट करें, मिलें. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके हृदय में अग्नि पैदा करेगा पवित्र जीवन जीने की, धर्मी जीवन जीने की, राइचस, अपराइट, रोशनी में चलने की, और अद्भुत काम करेगा परमेश्वर आपके साथ. तो ज्वाइन करें सुबह अर्ली मॉर्निंग. लें चैलेंज अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रेयर करने का. Bend your knees, find a place, bend your knees and begin to call upon the name of the Lord relentlessly. मुंह बंद मत करें, at least for 1 hour. आपको मालूम घड़ी, यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, क्या तुम एक घड़ी भी प्रार्थना ना कर सके? मिनिमम प्रेयर यीशु मसीह के लिहाज से एक घड़ी है. गत्समनी के बाग में चेलों से कहते, could you not watch and pray for, could you not pray for a watch? एक घड़ी प्रार्थना नहीं कर सके, उसे वॉच कहते हैं. एक घड़ी 3 घंटे की होती है. I believe it might take 3 hours for us to get out of the flesh and step into the spirit. करें. Take this challenge and let's pray. Hallelujah. Let's pray now. दुआ मांगे. Lord, I pray that your hand will come upon your people. All who hearken unto the word that I preached, Lord, may it sink deeper into their soul. Sink deeper into their heart, Lord. Lord, may this word transform them. May this word mold them, Lord. May your Spirit move like never before. I release your anointing, Lord. I release your anointing. And Father, I draw the hedge. I sprinkle the precious blood of the Lamb over your people. I sprinkle the precious blood of the Lamb over your people. I sprinkle the precious blood of the Lamb over your people. I bless each and every one, Father. Father, may many acknowledge this challenge. May many be drawn to pray, to pray, to pray, to pray, to pray. And seek you, Lord, and seek you, Lord, and seek you, Lord.
Seek you, Lord, on the higher horizons. Seek you in greater depths, Lord. हालेलुया, तेरा रूह काम करे, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको।